Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel TrustLogix Tutorial. TrustLogix is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our TrustLogix website and mobile. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज which nation will close its Kabul embassy ahead of the withdrawal of its final contingent? किस देश ने कबुल एम्बेसी क्लोज़ किया है फाइनल कंटिजेंट के विथड्रॉल के लिए? सो हियर आर द ऑप्शंस: इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. Australia has planned to close its Kabul embassy in 3 days ahead of the withdrawal of its final contingent of troops from Afghanistan, informed Prime Minister Scott Morrison on May 25, 2021. ओके, ऑस्ट्रेलिया ने प्लान किया है कि काबुल एम्बेसी को 3 दिन में बंद किया जाएगा फाइनल कंटिजेंट ट्रूप्स के विड्रॉल से पहले ही अफ़गानिस्तान से. ये किसने बताया? ये बताया प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने 25 मई को. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: द मिलिट्री junta ऑफ विच नेशन हैज़ अरेस्टेड द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर? किस देश के मिलिट्री जनता ने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया है? सो हियर आर द ऑप्शंस: ज़ाम्बिया, माली, एथियोपिया, एरिट्रिया. So here the correct answer is Mali. The military junta in Mali has arrested President Bah Nadao, Prime Minister Mokhtar Awan and Defense Minister Souleymane Daour of the country's interim government following a cabinet reshuffle on May 24, 2021. Okay. So now next question is which among the following vaccine does not yet feature in WHO's emergency use listing? अब तक किस वैक्सीन की इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग में नाम नहीं रखी गई है WHO की तरफ से? So here are the options: कोवैक्सीन, कोविशील्ड, सिनोफार्म, जॉनसन एंड जॉनसन. So here the correct answer is कोवैक्सीन. Bharat Biotech is confident about obtaining the WHO emergency use listing for its COVID-19 vaccine Covaxin. The drug manufacturer has submitted 90% of the documentation required for emergency use listing by the Global Health Body. Okay, भारत बायोटेक को अपनी वैक्सीन पे बहुत ही भरोसा है और WHO की तरफ से इमरजेंसी यूज़ के लिए कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ के लिए उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, पर अब तक वो अप्रूव नहीं हुए हैं. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हेन विल द टोटल लूनर एक्लिप्स बी विजिबल? टोटल लूनर एक्लिप्स कब दिखाई देगा? सो हियर आर द ऑप्शंस: May 26, May 27, May 28, May 29. So here the correct answer is May 26th. A total lunar eclipse will be visible on 26th May 2021. After a gap of 2 years, the rare celestial event would also include super blood moon, in which the moon turns slightly reddish orange in color. Total lunar eclipse 26 मई 2021 को देखा जाएगा 2 साल के गैप के बाद, और इसमें सुपर ब्लड मून भी देखा गया जो कि रेडिश ऑरेंज कलर का था. So now next question: which nation forced landed a flight carrying a dissident journalist? किस देश ने फोर्सफुली फ्लाइट जिसमें डिसिडेंट जर्नलिस्ट थे उसे लैंड करवाया है? सो हियर आर द ऑप्शंस: लातविया, बेलारस, लिथुआनिया, ग्रीस. सो हियर द करेक्ट आंसर इज बेलारस. Belarus on May 23, 2021 forced
landed a commercial plane Ryanair that was flying from Athens in Greece to Vilnius, the capital city of Lithuania, at Minsk, capital of Belarus. Belarus President Alexander Lukashenko reportedly ordered the detour of the flight on the pretext of a bomb scare to arrest dissident Belarus journalist Roman Protasevich, who had been living in exile in Lithuania since fleeing Belarus in 2019. मई 23, 2021 को बेलारूस में फोर्सफुली लैंड करवाया गया कॉमर्शियल प्लेन रायनर, जो कि एथेंस से ग्रीस से निकली थी और विल्नियस के लिए जा रही थी, जो कि कैपिटल सिटी है लिथुआनिया की मिन्स्क में, बेलारूस की कैपिटल सिटी। ओके, बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिन्होंने बताया कि फ़्लाइट जो है उसमें बॉम्ब स्केयर है, ताकि वो डिसिडेंट बेलारूस जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर सके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन हैज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एटियने ग्लिटिच अवार्ड ऑन May 21? किस भारतीय स्पोर्ट्स फेडरेशन को प्रेस्टिजियस एटियने ग्लिचिड अवार्ड दिया गया 21 मई को? सो हेयर आर द ऑप्शंस: ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हॉकी इंडिया। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज हॉकी इंडिया. Hockey India was honored prestigious Etienne Gletich Award on May 21, 2021 for its contribution and work towards the growth and development of hockey in India. The award was announced by the governing body of the game, International Hockey Federation, during the Hockey Invites conference held virtually as part of its 47th FIH Congress. हॉकी इंडिया को ऑनर किया गया प्रेस्टिजियस एटियन ग्लिचिस अवार्ड 21 मई 2021 को, जो कि उनके कंट्रीब्यूशन और वर्क को दिखाता है टुवर्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉकी इन इंडिया. इंडिया में कितना हॉकी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है. और ये अवार्ड अनाउंस किसने किया था? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किया था ड्यूरिंग द हॉकी इनवाइट कॉन्फ्रेंस हेल्ड वर्चुअली एज पार्ट ऑफ इट्स 47th FIH Congress. Okay, so now the next question, and here the next question is which internet browser will be retired for certain version of Windows 10 by June 2022? जून 2022 तक इंटरनेट ब्राउज़र की कौन सी वर्जन जो है वो रिटायर कर जाएगी? सो here are the options: मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, गूगल क्रोम. So here the correct answer is Internet Explorer. Microsoft on May 19, 2021 announced that the Internet Explorer 11 desktop browser will be retired on June 15, 2022 for certain version of Windows 10. Microsoft stated that the future of Internet Explorer on Windows 10 is in Microsoft Edge. Okay, माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि 19 मई 2021 को अनाउंस किया गया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 डेस्कटॉप ब्राउज़र जो है वो रिटायर कर जाएगा 15 जून 2022 को कुछ विंडोज़ 10 के लिए, और इसके बदले क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट एज. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: विच नेशन हैज़ प्रोविजनली अप्रूव्ड ब्रेथालेसे टेस्ट टू डिटेक्ट COVID-19 इन 1 मिनट? COVID-19 1 मिनट में डिटेक्ट करने के लिए ब्रेथालाइसे टेस्ट किस देश ने बनाया? सो हेयर आर द ऑप्शन: साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर, यूके. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर. सिंगापुर authorities on May 24, 2021 provisionally approved a COVID-19 breathalyzer test that determines if someone is COVID positive in less than a minute. सिंगापुर के अथॉरिटी ने 24 मई 2021 को बताया ब्रेथालाइजर टेस्ट के बारे में, जिससे कि पता लगता है कि कोई पर्सन कोविड पॉजिटिव है कि नहीं सिर्फ 1 मिनट में. So now next question: who has become the first woman of color to win the Oscar for Best Director? Best Director के लिए ऑस्कर जीतने वाली फर्स्ट वुमेन कौन थी? So here are the options: थॉमस विंटरबर्ग, ली आइजैक, चंग, क्लो जाओ,
Emerald Fennell. So here the correct answer is Chloe Zhao. Chloe Zhao won the Oscar for Best Director for the film Nomadland at the 93rd Annual Academy Awards on April 25, 2021. She became the first woman of color, first Chinese woman and second woman ever to win the award. क्लोज जाओ जो है उन्हें मिला है ऑस्कर अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर का, क्योंकि उनकी जो फिल्म थी नोमैडलैंड वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई और 93rd एनुअल एकेडमी अवार्ड्स में उन्हें ये अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर का 25 अप्रैल 2021 को. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन. विच फिल्म हैज़ वॉन द ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर एट 93rd एकेडमी अवार्ड्स. 93rd एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसे मिला? सो हियर आर द ऑप्शंस. नोमैडलैंड, प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7, मिनारी. So here the correct answer is Nomadland. Nomadland won the Oscar for Best Picture at the 93rd Academy Awards. Frances McDormand bagged the Oscar for the Best Actress for her performance in Nomadland, while Anthony Hopkins won the Best Actor honors for his performance in The Father. Okay, Nomadland को मिला है Best Picture Oscar Award 93rd Academy Awards में, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसकी एक्ट्रेस को मिला है, और एंथनी हॉपकिंस को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनके द फादर के परफॉर्मेंस के लिए. सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. सब्सक्राइब आवर ट्रस्ट लॉजिक्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोज़ रेगुलरली. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.